کر گایا ہوں۔ خرگان گاؤں ہے ہمارے یہاں، وہاں ادارے میں جلسہ ہو رہا تھا، یہاں مدرسے میں یہ بچے کیوں آئے ہیں؟ یہ بچے کی چہرے پر داڑھی آ گئی ہے، یہ بچہ ابھی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اٹھو اس کا باپ اور بتاؤ یہاں کس لیے بھیجا ہے؟ کیا چاہتا ہے اس اولاد سے؟ کیا لینا چاہتا ہے اس بچے سے؟ کس لیے حوالے کیا ہے مولانا تنظیم صاحب کے؟ کیوں یہاں بھیجا ہے؟ کیوں 22 سال اس کے یہاں لگوائے ہیں؟ اس بچے کو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین اور اس نورانی مجلس اور محفل میں شریک ہونے والے بہت ہی یہ جو مجمع اللہ کے نزدیک مقبول ہے، محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں ہمیں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا، اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اتنی بہترین مجلس میں بیٹھنے کا موقع ہماری زندگی میں ہم سب کو مرحمت فرمایا۔ اصل میں یہ جو ادارہ ہے یا مدارس جہاں بھی چلتے ہیں، میری بات تھوڑی دھیان سے تھوڑی دیر سننے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ مدرسے جہاں چلتے ہیں، مدرسوں میں جو سکھایا جاتا ہے، ہمارے ان بچوں کا جو ذہن بنایا جاتا ہے، ان بچوں کی گھٹی میں جس بیج کو ڈالا جاتا ہے اور ان بچوں کی جو تربیت اساتذہ کرام اپنے خون اور پسینے سے رات دن 24 گھنٹے کی محنت اور لگن سے اور ان کے پیچھے لگ کر ان کو اللہ کا قرب حاصل کرانے کے لیے مدارس اسلامیہ جو محنت کرتا ہے، اساتذہ کرام جو انتھک محنت اور کوشش کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر باغ کا مالی اپنے باغ میں درخت لگاتا ہے تو اس کی کتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور اگر گھر کے صحن میں کوئی پیڑ لگاتا ہے امرود کا تو اس کی کتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایک امرود کے پیڑ کے چاروں طرف اینٹیں لگائی جاتی ہیں کہ اس کی حفاظت ہو سکے، چھوٹے سے چھوٹے درخت کی حفاظت کی جاتی ہے اس کا پھل حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ جو ادارے ہمارے اس پورے ملک میں پھیلا رکھے ہیں، یہ پورے سال محنت کرتے ہیں اور رات اور دن، صبح اور شام، دن اور رات لگ کر اپنے بچوں پر جو محنت کا مزاج علماء نے ہماری گھٹی میں ڈالا ہے اور ہم نے جو سبق پڑھا ہے، آپ ہمارے سے اپنا جو روپیہ اور پیسہ دیتے ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مدرسے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اپنی معمولی تنخواہوں پر گزارا کر کر اور ہمارے بچوں پر محنت کر کر سال بھر میں تو نتیجہ سامنے لاتے ہیں، جو آپ کے سامنے اس وقت ہمارے ادارہ جامعہ دارالفلاح کی محنتوں کا نتیجہ ہمارے یہ 5 حفاظ کرام ہیں جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ یہ حفاظ کرام جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہے، ان کو قیامت کے دن یہ موقع فراہم کیا جائے گا کہ جاؤ تم ایسے 10 آدمیوں کو جن کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہوگا، ان کو لے جا کر جنت میں تمہیں یہ شفافیت کا اور یہ شفاعت کا حق حاصل ہے۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بتانا چاہوں گا کہ ان حفاظ کرام جو اپنے ایسے 10 آدمیوں کو جن کا جانا جہنم میں واجب ہو چکا ہوگا، جب وہ لا کر رب کے سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یہ وہ 10 آدمی ہیں
کہ جن کو جنت میں جانا میری شفاعت کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے اے حافظ قرآن آج تمہارا مقام بڑا اونچا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ ٹوڈا اگر مشہور ہے تو یہ نہیں کہ یہ بڑا گاؤں ہے، اگر ٹوڈا مشہور ہے تو یہ بات نہیں کہ یہاں کوئی جاگیردار رہتا ہے، اگر ٹوڈا یہاں ہمارے علاقے میں دور دور تک مشہور ہے تو اس گاؤں کے مشہور ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گاؤں سے باہر نکل کر کیرانہ چلے جائیں، آپ گاؤں سے نکل کر علماء کی برادری میں پورے ملک ہندوستان میں تشریف لے جائیں اور آپ کو جا کر کہنے کی یہ ضرورت محسوس نہیں پڑے گی کہ میں ضلع مظفر نگر کا فلاں قصبے کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں اس کا نام ٹوڈا ہے، اس کا رہنے والا ہوں۔ آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ میں ٹوڈا کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا شروع سے جب ہم نام سنتے تھے کہ ٹوڈا میں اتنی زبردست تعلیم ہوتی ہے، یہ گاؤں اگر مشہور ہے، یہ گاؤں اگر مشہور ہے، اس گاؤں کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ قرآن کی محنت کی وجہ سے جانتا ہے، قرآن کے فضل کی وجہ سے جانتا ہے، قرآن احرا پر جو محنتیں اساتذہ کی کرام نے کی ہے اس کی وجہ سے تمہارے گاؤں کا تعارف ہے۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں یہ لوگ کہ جن کے گاؤں میں ایسا مدرسہ اور مدرسے کا ایسے استاد موجود ہیں جو ہماری نسلوں پر صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں۔ یہ کیا محنت کرتے ہیں، میں ابھی ایک پروگرام سے نہیں 2 پروگرام سے واپسی پر یہاں ذرا تاخیر سے پہنچا ہوں۔ اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو کالجوں میں اگر پڑھایا جائے گا 25,000 تنخواہ ملے گی، 50,000 تنخواہ ملے گی، وہاں انجینئر اور ڈاکٹر بنایا جائے گا، لیکن یاد رکھو اگر ہم نے اپنے بچے کو MD ڈاکٹر بنا دیا ہے، MBBS ڈاکٹر بنا دیا ہے، ہم نے اپنے بچے کو سرجن بنا دیا ہے تو وہ ایک ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتا ہے جس کی تنخواہ 1.5 سے 2 سے 2.5 لاکھ روپے ہوتی ہے، لیکن وہاں علاج ہوتا ہے اس آنکھ کے درد کا کہ آنکھ میں درد ہے تو دوائی ملے گی، کان میں درد ہے دوائی ملے گی، پیٹ میں درد ہے دوائی ملے گی، آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے اس کی دوائی ملے گی۔ ایک بچہ جاتا ہے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس اور جا کر یہ کہتا ہے میری آنکھوں کو ڈاکٹر صاحب چیک اپ کر لیجئے، میری آنکھوں کو چیک کیجئے۔ ڈاکٹر اپنی مشینوں کے دوارا اپنے ہاسپٹل میں جب اس بیمار بچے کی آنکھوں کا چیک اپ کرتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں تو بالکل تندرست ہیں، ان آنکھوں میں تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میری آنکھ بیمار ہے، میں آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں، کیا بیماری ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے؟ میری آنکھوں سے پانی نہیں بہتا۔ کیا تمہاری آنکھوں میں درد ہے؟ کہ میری آنکھوں میں درد بھی نہیں ہے۔ کیا رات اور شام کے وقت میں تمہاری آنکھیں چندھیاتی ہیں، ان سے کم نظر آتا ہے؟ یہ جوان بچہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں سے کم بھی نظر نہیں آتا، چندھیاتی بھی نہیں ہے۔ اس ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر اور سرجن اس بچے سے معلوم کرتا ہے کہ پھر تمہیں دوائی کس کی لینی ہے، تمہاری آنکھیں تو تندرست ہیں۔ وہ بچہ سرجن کے سامنے بیٹھ کر یہ کہتا ہے میری آنکھیں بیمار ہیں، اس بیماری کا پتہ آپ کو پتہ نہیں چلا ہے، بتاؤ میری مشین میں تمہاری بیماری نہیں آئی ہے، تم کس چیز کے بیمار ہو؟ وہ جوان 22 سال کا ہے، ڈاکٹر سرجن کے سامنے بیٹھا ہوا کہتا ہے میرے پاس بیماری ہے، ایسی مہلک بیماری ہے، ایسا گھناؤنا بیمار میں پڑا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر الٹا سوال کرتا ہے میری بات آپ کو بڑے دھیان سے سننی پڑے گی، آپ کو دلوں کی تختیوں پر لکھ کر کے میرے اس جملے کو جانا پڑے گا۔ یہ بچہ ڈاکٹر سے کہتا ہے میں بہت بڑا بیمار ہوں، ڈاکٹر صاحب کوئی آپ کے ہاسپٹل میں، کوئی آپ کے میڈیکل میں ایسی کوئی دوائی ہو جو میری بیماری کا علاج کر سکے۔ میں قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں اگر اس مجمع میں علماء کے روبرو اور یہاں اس مسابقے میں جو دار الفلاح میں مسابقہ
मौलाना तंजीम और मौलाना सादिक साहब की मेहनतों के नतीजे में अमल में आ रहा है। पूरा हिंदुस्तान इस मुसाबके को देखता है। जब टोडा की सरजमीन के ऊपर कुरान करीम के ये फूल खिलाए जाते हैं, देवबंद से और सहारनपुर से, मुरादाबाद से और दूसरे सूबों से और दूसरे शहरों से जब टोडा की सरजमीन पर बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाते हैं, अहले मदारिस तशरीफ लाते हैं, छटे हुए बच्चे आते हैं, जब कहीं दंगल पड़ता है तो उस्ताद अपने बच्चों को लेकर कुश्ती लड़ाने के लिए जाता है। वो लंगोटा पीट कर वहां दंगल में कुश्तियां लड़ता है। हमारे ये बच्चे भी एक मदरसे के बच्चे नहीं हैं, सैकड़ों मदरसों के बच्चे टोडा की सरजमीन पर अपने सीनों में कुरान की दौलत को लिए हुए तुम्हारी सरजमीन पर आए हुए हैं। तुम्हारे लिए खुश नसीबी की बात यही हो सकती है कि आज हमारी सरजमीन पर दारूम में पढ़ने वाले असातिज़ाओं के बच्चे तुम भी टोडा की सरजमीन पर आ जाओ। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमसे 3 साल पहले या 4 साल पहले जब मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ था और टोडा के उस मदरसे दारुल फलाह की अंदर की जगह पर मुसाबका हो रहा था, एक बच्चा बहराइच का बैठा हुआ अंदर कुरान करीम देख रहा था। मैंने उससे मालूम किया, बेटे तुम कहाँ पढ़ते हो? वो कहने लगा दारुल वक्फ का तालिबे इल्म हो, मिशकात शरीफ पढ़ रहा हो, मुसाबके में आया हूँ। ऐ टोडा के रहने वालों, तुम्हारा मुसाबका हो रहा है। यहाँ कुरान करीम के पर नाज रखने वाले उलमा, मेहनत करने वाले अपने शेरों को लेकर तुम्हारी जमीन पर आए हैं। आज आकर के देखो, इन बच्चों ने मुजाहरा किया है, ये वो पहलवान बैठे हैं, इनको क़यामत के दिन ये कहा जाएगा हाफिज़ कुरान आजा, हमारी ये जन्नत है, इस जन्नत के ऊपर कुरान पढ़ता हुआ चला जा, इसके दर्जों को पार करता चला जा, जहां तेरी आखिरी आयत होगी वही तेरी मंजिल होगी। ये पहलवान यहाँ आते हैं। मैं तमाम उन बच्चों से जो इस मुसाबके में आए हैं, आप पहली और दूसरी और तीसरी पोजीशन के चक्कर में न रहे। आपने बड़ी मेहनतें की है, आपने कुरान को बड़ा याद किया है, आपने कुरान के अल्फाज को बड़ा मेहनत से याद किया है। अल्लाह उसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मायूस होकर आपको यहाँ से जाना नहीं है। मैं शेख सादी की वो बात याद आ जाती है जब आप हिम्मत हार कर बैठ गए थे। आपने एक चींटी को देखा कि वो दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है। शेख सादी कहते हैं जब ये छोटा जानवर भी हिम्मत नहीं हार रहा है तो मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए। मेरे अजीज तलबा, आपसे गुजारिश है, आपसे दरखास्त है, आपसे इल्तिजा है, आप मेहनतों के साथ, आप बड़ी मुशक्कतों के साथ, बड़ी मेहनत करके आप तशरीफ यहाँ लाए हैं। अल्लाह ही उसका अजर अज़ीम अता फरमा सकता है। अगर यहाँ मदरसे वालों ने, मैंने देखा है कहीं 10,000 मिलते हैं, कहीं 20,000 मिलते हैं, कहीं हुफ़ाज़ कुरान जो अव्वल पोजीशन का आ जाता है उसको उम्रे की, उसके उम्रे का टिकट फराहम कर दिया जाता है। हम खुश होते हैं, हमारे लिए ये भी बहुत है। लेकिन याद रखो, हुफ़ाज़ किराम कुरान करीम की उस आयत को पढ़ो जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल, खालिक़े कायनात, मालिक रब्ब अर्ज़ व समा कहता है इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। तुम मोमिन पक्के मुसलमान हो, तुम्हारी कोई कीमत इस दुनिया में नहीं दे सकता है। तुम्हारी कोई कीमत इस दुनिया में, कोई तिजोरी में इतना रुपया और पैसा नहीं है जो तुम्हारी कीमत लगा सके। इसलिए कि तुम्हारा खरीदार तो रब्बे जुल जलाल है, खालिक़े कायनात है, मालिक रब्ब अर्ज़ व समा है, और हमारी कीमत उसने हमारी जन्नत लगाई है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर। मदारिसे इस्लामिया, मदारिसे इस्लामिया जिंदाबाद, मदारिसे इस्लामिया जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद। एक जरा सी गुजारिश करना चाहता हूं, मेहमान आपके गांव में दूर से आया हूं, अगर आप बुरा ना माने तो खड़े हुए अहबाब, ये बहुत मुबारक मजलिस है। आप अपनी शान और शौकत को न देखें, बंदे की अर्जी को समझे। अगर आपका दिल चाहे, यहाँ आगे जगह खाली है, आपको आपकी शान निशान कुर्सियां भी मिल जाएंगी, आप इसकी दुआ में शरीक होंगे।
ये मुसाबक़े और कुरान करीम की महफिल की दुआ है। आप अगर चाहें तो आगे तशरीफ लाएं। हमारे ये छोटे छोटे बच्चों के पास कुर्सियां खाली हैं। आपके एजाज़ इकराम के लिए उम्मीद है कि कुछ लोग जरूर चलकर आएंगे, तशरीफ लाएंगे, आगे आकर बैठ जाएंगे। ज्यादा ही अच्छा होता कि मदरसे का कोई उस्ताद खुशामदों के जरिए से ठोड़ियों में हाथ डालकर हमारे इन गांव वालों को, हमारे इन बूढ़े हजरात को बुला कर लाए। यहाँ बहुत कुर्सियां खाली हैं, आप तशरीफ लाएं। 10 से 15 मिनट के बाद दुआ हो जाएगी, आप आराम के साथ बैठ जाइए। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इतना बेहतरीन मजमा है। आ जाइए, आप तशरीफ लाइए। सामने जो कुर्सियां खाली हैं आप इस पर जलवा अफरोज हो, आप इस पर बैठ जाएं। आपका एहतराम है, आपका इकराम है, आपका आना हमारे सर आंखों पर है। यहाँ इदारे वालों ने आप ही के लिए इंतजाम कर रखा है। ये जो बच्चे हमारे यहाँ मुख्तलिफ जिलों से, मुख्तलिफ मदरसों से तशरीफ लाए हैं, ये आप इनका हौसला बढ़ाएं, आप इनका हौसला बढ़ाएं, आप इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। मैं तो ये कहूंगा कि दुआ जब हो जाए और हमारे तलबा का जब इनाम तकसीम हो जाए और हमारे वो तलबा जिनका नाम नहीं आया है, क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो कि गांव के लोग लाइन लगा लें और हमारे इन हुफ्फाज़ किराम के सरों पर अपना हाथ रखें। और अगर आपकी जेब में कुछ है 50 या 100 रुपए, हमारे इन तलबा अजीज की हौसला अफजाई कराएं, लाइन लगाकर खड़े हो जाएं। हो सकता है ये लाइन अल्लाह के यहाँ मंजूर हो जाए और यही मगफिरत का जरिया बन जाए। हो सकता है हमारे गुनाहों की वजह से हमारी मगफिरत ना हो सके, लेकिन आज का हमारा गुनहगार हाथ इन बच्चों के सरों पर जब रखा जाएगा, जो कुरान के हाफिज है, हमारे गांव में आए हैं, ये अपने दिल से खुश होकर दुआ देकर आपके गांव से जाएंगे। रब्बे जुल जलाल खालिक़े कायनात अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमाकर हमारी मगफिरत फरमाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुने, बात बहुत दूर चली जा रही है। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा था कि एक सर्जन के पास एक जवान बच्चा बैठा है और ये कहता है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को सुनकर समझकर इंशाअल्लाहुल अजीज मुझे उम्मीद है कि मैं भी अमल करूंगा, आप भी अमल करें। वो बच्चा डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दीजिए। आज तक किसी हॉस्पिटल में ऐसी दवाई नहीं बनाई गई है। जिस बीमारी की दवाई लेने ये बच्चा डॉक्टर के पास गया है, आज तक किसी माँ ने ऐसा डॉक्टर जिस्मानी आज तक जन्म ही नहीं दिया है जो इस बच्चे की बीमारी का इलाज कर सके। ऐसा कोई मेडिकल स्टोर नहीं है जिस मेडिकल स्टोर में इस बच्चे की बीमारी के लिए दवाई मिल सके। ये बच्चा डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया हूं, मैं आंखों का बीमार हूं, आप मेरा इलाज कर दीजिए, मुझे दवाई दे दीजिए। डॉक्टर कहता है, ना तुम्हें नजर कम आता है, ना तुम्हारी आंखों में दर्द है, ना तुम्हारी आंखों से पानी बहता है। आए नौजवान मुझे बता तो सही तू बीमार किस चीज का है। वो जवान सर्जन से कहता है, एमडी डॉक्टर से कहता है, मैं बीमार हूं, मेरी आंख बीमार है। मैं जब बाजार में चलता हूं, मैं दूसरों की बहू को देखता हूं, जब बाजार में चलता हूं किसी की बेटी को देखता हूं, जब घर में होता हूं पड़ोस में रहने वाली बच्ची को देखता हूं, मेरी आंख मेरे कंट्रोल में नहीं है। आपने देखा होगा सड़क पर ब्रेकर बनाए गए हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जगह जगह लिखा है सावधानी के साथ गाड़ी चलाए, सावधान रहें, आगे ब्रेकर है, जरा आराम के साथ चले। मेरे भाई इसकी आंख कंट्रोल में नहीं है। वहां उस हॉस्पिटल में पेट के दर्द की दवाई है, सड़क के दर्द की दवाई है, सर के दर्द की दवाई है। वो आंख जो आंख किसी गैर महरम पर उठती हो, वो आंख जो बाजार में चलने वाली बहन के ऊपर उठती हो, ऐसी कोई फैक्ट्री आज तक दुनिया वालों ने जन्म नहीं दी है कि उसकी दवाई दे सके कि इसकी आंख गलत उठती है, कि कान गलत सुनते हैं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूं, एक हॉस्पिटल वो है जहां जिस्मानी दवाई मिलती है, एक हॉस्पिटल ये है दारुल फलाह जहां रूहानी बीमारियों का इलाज होता है। अगर किसी की आंख गलत देखती है तो डॉक्टर के पास दवाई नहीं है, इन गुदड़ी पोशों के पास दवाई है, इन तहज्जुद गुजारों के पास दवाई है, इन इशराक पढ़ने वालों के पास दवाई है, इन चाश पढ़ने वालों के पास दवाई है, इन अवाबीर पढ़ने वालों के पास दवाई है। इनका अल्लाह से वो ताल्लुक जुड़ा हुआ है। कभी हमारी किस्मत में अल्लाह
ये माशरा बीमार है, मेरी बात ध्यान से सुने, ये माशरा बीमार है। मैं आपको मोटी सी मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। अगर यहां किसी की गाड़ी रुक जाए और यहां किसी की गाड़ी में गन्ने भरे हुए हों और एक ट्रेली यहां रुक जाए और उसके ट्रैक्टर की बैटरी बिल्कुल लो हो गई हो, वो ट्रैक्टर का मालिक ये कह रहा हो, 20 आदमी यहां बैठे हुए हो, उन 20 आदमियों से वो ट्रैक्टर का ड्राइवर कहता है जरा मेरी गाड़ी में धक्का लगाओ, मेरी ट्रेली में धक्का लगाओ, मेरी बैटरी लो है, धक्का लगाने से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उन 20 में से एक कहता है मैं शुगर का पेशेंट हूं, दूसरा कहता है मैं टीबी का पेशेंट हूं, चौथा कहता है मुझे बुखार है, पांचवा कहता है मैं बहुत बड़ा बीमार हूं। ये 20 के 20 इनकार कर देंगे। ये 20 इस काबिल नहीं है कि रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगा सके। ठीक इसी तरह से ए टोटा के मुसलमानों, यहां बैठने वालों, महफूजुर रहमान ये कह करके जाता है गलियों में आज मुस्लिम बीमार घूम रहा है, ये नौजवान आंखों का बीमार है, ये कानों का बीमार है, ये जबानों का बीमार है, ये दिल का बीमार है, ये सारा माशरा बीमारियों से भरा पड़ा है। रब्बे जुल जलाल खालिक कायनात से हाथ उठाकर दुआ मांगता है। रब कहते हैं तुम सारे बीमार हो, कोई गीबत का बीमार है, कोई चुगलखोरी का बीमार है, कोई आंखों की बेहयाई का बीमार है, कोई कानों से गलत सुनता है, कोई जबान से झूठ बोलता है। अगर इस माशरे को इस्लाह करनी है तो फिर रब्बे जुल जलाल को न करोड़ों की जरूरत है, न लाखों की जरूरत है। उठाओ इस कुरान करीम को, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। उठाओ कुरान करीम को, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे 1000 की जरूरत नहीं, मुझे 10,000 की जरूरत नहीं, लेकिन 313 तो चाहिए। मुझे वो 313 वो चाहिए, 100% मुसलमान हो। हमारा काम ये है, ये दारुल फलाह, ये जो बच्चे बैठे हैं, मैं अभी ये बात कहकर गाया हूं। खुरगाने गांव है हमारे यहाँ, वहां इदारे में जलसा हो रहा था। यहाँ मदरसे में ये बच्चे क्यों आए हैं? ये बच्चे की चेहरे पर दाढ़ी आ गई है, ये बच्चा अभी मदरसे में पढ़ रहा है। उठो इसका बाप और बताओ यहाँ किस लिए भेजा है, क्या चाहता है इस औलाद से, क्या लेना चाहता है इस बच्चे से, किस लिए हवाले किया है मौलाना तंजीम साहब के, क्यों यहाँ भेजा है, क्यों 22 साल इसके यहाँ लगवाए हैं, इस बच्चे को क्यों भेजा है? हॉस्पिटल में जाएगा, किडनी का डॉक्टर बनेगा, हॉस्पिटल में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, सर का डॉक्टर बनेगा और आगे जाएगा दिल का डॉक्टर बनेगा। यहाँ क्या सिखाने भेजे हैं? सारी दुनिया ये कहती है, सारी दुनिया के कॉलेज ये कहते हैं, सारी दुनिया के मादियत पसंद लोग ये कहते हैं कि भैंस के थनों से दूध आता है। मेरी बात ध्यान से सुने, आखिरी बात, दूध भैंस के थनों से आता है। हम ये इन बच्चों को सिखाते हैं। दारुल फलाह आपके बच्चों को ये तालीम देता है। जब सारी दुनिया ये कह रही हो कि दूध भैंस के थनों से आता है, तुम्हें इस दुनिया की मुखालिफ आवाज लगानी है, तुम्हें इस दुनिया को मुखालिफ सिमत को बताना है, तुम्हें इस दुनिया का रुख मोड़ना है। तुम इमाम हो, ये बच्चे बैठने वाले महफूजुर रहमान ललचाई हुई नजरों से और इन तलबा की तरफ देख रहा है। बेटे वो चिराग जलाओ जो चिराग की अब जरूरत है। इस पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, सारी दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है। ये बच्चे मदरसों की चटाइयों पर बैठकर इमाम बनेगा, खतीब बनेगा, मुफ्ती बनेगा, फतवा देगा, तलाक का मसला बताएगा, इज्जत की बातें बताएगा, पड़ोसी के हुकूक बताएगा। सारी दुनिया ललचाई हुई नजरों से अब तुम्हारी तरफ टिकटिकी लगाई हुए देख रही है। दारुल फलाह ने इन बच्चों को दिया है, हम इन बच्चों को ये सिखाते हैं। सारी दुनिया ये कहती है कि दूध भैंस के थनों से आता है। हम इन बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें ये आवाज लगानी है कि दूध भैंस के थनों से नहीं आता, दूध तो अल्लाह के खजानों से आता है। भैंस दूध नहीं देती, दूध तो अल्लाह के खजानों से आता है। मैं इसको एक मिसाल के जरिए से आसान करता चलूं। हमारे यहाँ सामने अगर एक भैंस बंधी हुई हो, हमें उस तरफ ले जाना हो और ठीक 6 बजे हमारे एक दूधिया आता है 2 व्हीलर पर दूध लेने के लिए। हम अपनी गाय का दूध 6 बजे रोजाना, एक किसान रोजाना 12 लीटर दूध अपनी गाय का निकालता है, लेकिन वो इस खोटे से खोलकर घर पर ले जाना चाह रहा था। रोड के उस पार जब गाय जा रही थी, पीछे से एक बड़ा ट्रक आया
तेजी के साथ एक गाड़ी आई और गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया गाय का, और गाय के पेट के ऊपर वो गाड़ी उतर गई। स्पॉट पर गाड़ी को भैंस और गाय मर गई। हाथ उठाकर बताओ टोडा के लोगों, महफूजुर रहमान चौड़े में पूछना चाहता है, हम ये बताना चाहते हैं दुनिया जो कह रही है वो गलत है, और मदरसे वाले जो अपने बच्चों को बता रहे हैं वही सही है। आप मुझे बताइए 5:59 पर आपकी गाड़ी के साथ आपकी गाय का एक्सीडेंट हुआ है, और 6 बजे रोजाना शाम को 6 बजे आप बड़ी बाल्टी लाकर 12 लीटर दूध निकालते हैं। अगर कोई किसान यहां बैठा हुआ हो, महफूजुर रहमान की बात को झुटलाने के लिए हाथ के इशारे से उठाकर ये कहे कि 5:59 पर गाय या भैंस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके नीचे से 12 किलो दूध निकाला है, उसका पेट जब फटा था तो गोबर तो निकलता है लेकिन दूध नहीं निकलता। सुभान अल्लाह। देखा आपने कभी? कुरैशी आता है, जानवर को ज़िबाह करता है, वो जानवर रोजाना 10 से 12 लीटर दूध देता है, भैंस रोजाना दूध देती है, लेकिन जब उसके पेट को चाक किया जाता है, जिस्म के पार्ट्स अलग किए जाते हैं, वहां गोबर तो मिलता है, खून तो मिलता है, लेकिन उस गाय से जो 1 मिनट के बाद 12 लीटर दूध देना था, 1 मिनट पहले जो हादसा हुआ है 12 लीटर का 12 कतरा दूध का नहीं निकलता है। हम इन बच्चों से यही सिखाते हैं, आपको भी यही कहना पड़ेगा, हम भी बच्चों को सिखाने के लिए ही भेजते हैं। इसी को कहा था आखिरी बात, बायजीद बुस्तामी की वालिदा जब अपने बच्चे को लेकर मदरसे में आई थी और आकर ये कहा था उस्ताद से, ये नहीं कहा था मेरे बच्चे को हाफिज बना दो, ये नहीं कहा था मेरे बच्चे को मौलाना बना दो, उस्ताद से ये नहीं कहा था जब हाफिज हो जाए घर भेज देना, जब मौलाना हो जाए पगड़ी लपेट कर घर भेज देना। क्या कहा था बायजीद बुस्तामी की मां ने अपने बच्चे के उस्ताद से? ये कहा था बायजीद बुस्तामी की वालिदा ने, हाफिज कुरान जब बन जाएगा आप ही के पास रहेगा, जो भी बन जाएगा आप ही के पास रहेगा, 10 साल हो, 1 साल हो, 4 साल हो, मेरा बच्चा आप ही की खिदमत में रहेगा। कब तक रहेगा? ये कहती है बायजीद बुस्तामी की वालिदा, जब तक मेरे बच्चे का दिल का ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ नहीं जुड़ जाता, उस वक्त तक मेरा बच्चा आप ही के पास रहेगा। वक्त ज्यादा हो जाएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, हम इन बच्चों का जहन बनाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी फेल हैं। अब से जब दारुल देवबंद बना था और दारुल देवबंद की जब पहली जमात निकली थी, जहां जिसको लक़ब शेखुल हिंद का मिला है, और जहां शेखुल इस्लाम पैदा हुए हैं, और जहां शेखुल तफसीर पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे में हल्का सा हमें कमी नजर आ रही है। हमारे मुंह में ऐसा लुकमा फंसा हुआ है, न आगे जा पा रहे हैं न पीछे हट पा रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप हमारा ताउन फरमाए, आप दुआओं के जरिए से इस मदरसे का और जितने रोए जमीन पर इदारे हैं और जितनी तंजीमें हैं और जितनी इशाअत इस्लाम के लिए लोग काम कर रहे हैं, अपने हाथ उठाकर हमेशा दुआ मांगा करो। अल्लाह इन इदारों को क़यामत की सुबह तक के लिए कबूल फरमाए, सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह जारी व सारी फरमाए। हमारे दारुल फलाह को भी अल्लाह सुबह क़यामत तक इसमें काम करने वाले असातिज़ाए किराम को, चलाने वाले अमले को अल्लाह तौफीक से नवाजे। बड़े दुख के साथ आखिर में ये बात कहनी पड़ती है आप हजरात से कि ये दारुल फलाह अब से जब बहुत साल पहले आए थे, उस वक्त भी नमाज पढ़ने का कोई खासा वहां इंतजाम नहीं है। नीचे एक वो बेसखाना बनाया गया है जिसमें बच्चे नमाज अदा करते हैं। मेरी आप हजरात से गुजारिश है, आपसे दरखास्त है, आपसे इल्तिजा है, हाथ जोड़कर आपसे, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मौलाना दिल्ली रहते हैं, इनको अल्हम्दुलिल्लाह कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, ये स्टेज पर जितने भी उलामा बैठे हुए हैं और आप जितने हैं और ये हमारे बच्चे और ये उलामा जितने बैठे हैं, अगर आप कपड़े की दुकान करते हैं, महफूजुर रहमान भी कपड़े की दुकान कर सकता है। आपके 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है, इनके भी 2 हाथ है, आपके 2 पांव हैं, आपके भी 2 पांव हैं। जो सामान आपके पास है ये अहले इल्म हजरात हैं, ये भी बाजार में बेच सकते हैं, ये भी कपड़े की दुकान कर
कर सकते हैं, ये भी कमा सकते हैं, लेकिन हमारी घुट्टियों में घोल कर हमारे उस्तादों ने ये तुखम और बीज बो दिया है कि बेटे करना मदरसे ही का काम है, 8,000 और 25,000 की तरफ न देखना, रोजी तो अल्लाह के हाथ में है। वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। आए रहने वाले यहाँ इस गांव के लोगों, बैठने वाले नौजवानों, मैं अभी कह करके आया हूँ, पत्थर दिल है वो आदमी जो दूसरों के काम ना आए। इस गांव में कितनी बेवाएं होंगी जिनके बच्चे सड़कों पर घूम रहे होंगे, कितने यतीम होंगे जिनके बच्चे सड़कों पर घूम रहे होंगे। किसी बच्चे का हाथ पकड़कर पूछो यहाँ क्यों घूम रहे हो, घर बुला कर ले जाओ, उसकी माँ कहेगी स्कूल का टीचर फीस मांगता है, इसके यूनिफॉर्म के पैसे मांगता है, इसकी किताबों के पैसे मांगता है, इसकी कॉपी के पैसे मांगता है। कितना पत्थर दिल है वो आदमी जिसने अपने बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए डाले हैं, तिजोरी में पैसा डाला है, किसी यतीम के काम नहीं आता, किसी बेवा के काम नहीं आता। इन बच्चों को ले जाकर मस्जिद और मदरसे के हवाले नहीं करता, स्कूल के टीचर के हवाले नहीं करता। आए यहाँ बैठने वाले नौजवानों, आए कमाने वाले मुसलमानों, अपने दिल को माम बनाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आरास्ता होकर उठो और खोलो अपनी तिजोरियों के मुंह को, उठो और खोलो अपने बैंक बैलेंस से पैसे निकालो। और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा अजीज को, स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे बच्चों को अगर उनकी फीस नहीं जा रही है, क्या गजब हो जाएगा अगर एक बच्चे की फीस आप पे कर दोगे, क्या आफत आ जाएगी अगर आपका बच्चा 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए फीस देकर एक स्कूल में पढ़ रहा है, अगर आपका बच्चा नीट के एग्जाम की तैयारी 2.5 लाख रुपए देकर कर रहा है, कौन सी मुसीबत आ जाएगी एक यतीम औरत के बच्चे को, एक बेवा के औरत के बच्चे को। आपने उसकी कफालत ले ली, आपने उसको पढ़ा दिया। याद रख मालदार, अगर तेरा बच्चा वहां फेल हो रहा था, इस यतीम बच्चे की दुआओं की वजह से अल्लाह तेरे बच्चे को भी तरक्की से नवाज देगा। आप अपने दिल की हालत को यहां से बदल कर जाएं। आज आपकी दिल की दुनिया बदलनी बहुत जरूरी है। आज आपको अपनी सोच को बदल कर यहां से जाना है। हमारे इस टोडा गांव में कितने घर हैं और घरों में रहने वाले कितने बच्चे हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, ये जो मजमा मेरे सामने बैठा है, अगर आप मुझे ये कहें कि यहाँ इन बैठने वाले लोगों से, इनसे पूछें, आप इन बैठने वाले लोगों से आप मालूम करें और मालूम करें इनसे तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें हैं। मालूम ये छोड़ दो, अरे 50 और 100 बीघे जमीन छोड़ने वाला बाप, उसकी दुनिया से आज रूह परवाज कर गई। उसका अंदर से उसके बुरशेट को काट दिया गया, कैंची के जरिए से उसके कपड़ों को काटा जा रहा है, उसके बनियान को कैंची से काटा जा रहा है। वो माँ जिसने मुझे और आपको अपनी मोहब्बतों के नतीजे में पाला और पोसा है, अगर माँ ख्याल न करती तो कीड़े और मकोड़े खा जाते। आज वो बाप दुनिया से जा रहा है, जनाजे की चारपाई पर कफन की चादरों में लेटा हुआ है। तुझे गाड़ी देकर गया है, दुकान देकर गया है, मकान देकर गया है, 150 बीघे जमीन देकर गया है। आज तेरी माँ का जनाजा रखा है, आज तेरे बाप का जनाजा रखा है। बता रहने वाले नौजवान, आज के बाद तेरी माँ नहीं आएगी, आज के बाद तेरा बाप नजर नहीं आएगा। तू हाथ बांध कर खड़ा है, मुझे बता तो सही, आखिरी दीदार के वक्त में अपने बाप के नमाज जनाजा पर खड़े होकर क्या पढ़ेगा? नहीं याद है आपको? आप ये तो कहना जानते हैं कि मदरसे बहुत हो गए, आपको नहीं याद है कि जनाजे पर क्या पढ़ा जाएगा? आपको नहीं याद है कि माँ के बाद आज माँ जा रही है, आज के बाद वापस नहीं आएगी। आपको नहीं पता कि आखिरी बार माँ को क्या दुआ देकर यहां से मुझे भेजना है, आप नहीं जानते हैं। आज कब्रिस्तान के हवाले है, आज उस मिट्टी के हवाले है मेरी माँ। कपड़ों को देख कर रोएगा, कमरे को देख कर रोएगा, सामान को देख कर रोएगा, लेकिन आज के बाद माँ वापस नहीं आएगी। इसलिए मदरसे वाले कहते हैं ये जो हमारी फसल है, ये जो नर्सरी है, ये जो बच्चे बैठे हैं, मैं हमेशा कहा करता हूं कि नस्ल ही असल है, नस्ल ही असल है। नस्ल खराब हो गई तो अब फिर इस उम्मत का क्या होगा? मेरा जी चाहता है एक बात कहकर यहां से रुखसत हो जाऊं और उम्मीद करता हूं कि आप कल से उस पर, जब आने वाली कल 28 तारीख 29 तारीख होगी और आसमान पर एक सूरज निकलेगा, मुझे उम्मीद है कि यहां के खड़े हुए नौजवान जिनको अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, तुम चौधरी हो, प्रधान हो, अपने गांव के इमाम हो, मदरसे के मोहतमीम हो, आप जिम्मेदार हो, लेकिन ये बात कहना चाहता है महफूजुर रहमान, डॉक्टर जब सुबह को घर
से आता है, कुर्सी पर नहीं जाकर बैठता, अपने हॉस्पिटल में जाकर राउंड लगाता है, मरीजों को चेकअप करता है। क्या ये अच्छा है ये खड़े हुए और बैठे हुए नौजवान और यहाँ इस गांव और दूसरे गांव से आने वाले अफराद? बेहतरीन बात यह है कि हर आदमी ये जिम्मेदारी ले कि अपने घर के बराबर में रहने वाले 10 घरों का कल सर्वे करूंगा। सर्वे टीम गवर्नमेंट की आती है, सर्वे टीम पोलियो वाले आते हैं। आप 10 मुसलमानों का घर का सर्वे अपने घर से करें और उन घरों में जो बच्चे अनपढ़ी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बेनमाजी हैं, नमाज नहीं सीख रहे हैं, 6, 7, 8, 9 साल के बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जवान उठ और उस बच्चे की उंगली पकड़, उसको स्कूल का रास्ता दिखा, उसकी फीस को पे कर, उसका यूनिफॉर्म कर। इसी को कहा था अली मियां नदवी मरहूम नव्वरल्लाहु मरकदहू ने कि जो सवाब मस्जिदों में चंदा देने से और मस्जिदों के बनाने से मिलेगा, वही सवाब इस्लामी स्कूल के बनाने और चंदा देने पर भी मिलेगा। सवारो इस नस्ल को, उठ जाओ और कफन सर से बांध लो। मुझे उम्मीद है अगर आप सब तैयार हो गए, आने वाले 10 साल स्कूल में जाने वाला बच्चा कोई नहीं मिलेगा, सब मदरसों के हवाले होंगे। और मदरसे वालों से गुजारिश अदबन दरखास्त करता हूं, एक बहुत अहम इजलास कैराना की सरजमीन पर सिर्फ उलमा मौजूद थे, वहां मैंने ये बात कही है आज सुबह कि यहाँ स्कूल हो रहा है, यहाँ स्कूल हो रहा है। हमारे यहाँ उलमा बैठे हैं, एक मदरसे में 20 कमरे हैं, 10 बीघे जमीन में बना हुआ है, 50 कमरे हैं, करोड़ों रुपये उसका खर्च है और सारा ये लोग देते हैं, गन्ना काट कर, छोल कर, मजदूरी कर कर ये अफराद देते हैं। हर मदरसे में कमरे मौजूद, हर मदरसे में जमीन मौजूद, हर मदरसे में बच्चे मौजूद, हमें कुछ नहीं चाहिए। मदरसे वालों से गुजारिश है कि आप जहां हिफ्ज पढ़ाने के उस्ताद का इंतजाम करते हैं, जहां आपके यहाँ 30 उस्ताद हैं, आप कल से 10 उस्ताद, 10 टीचर बिल्कुल जिनके सर जोड़ती हुई तालीम हो, जो इंग्लिश के साइंस के माहिर हो, मैथ के बेहतरीन टीचर हो, अपने मदरसे में ला करके उनको दरसगाहें खाली कर दें। महफूजुर रहमान की बात दिलों पर लिख कर चले जाना। अगर ये काम हमने कर लिया तो आने वाले 10 साल हमारे होंगे और स्कूल वालों को नहीं होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। और ये काम सब फ्री में हो जाएगा। वहां तालीम ताजराना है, यहाँ खैर खाना है, इनमें दोनों में बड़ा इम्तियाज है। वहां तिजारत की जा रही है, यहाँ लोगों की इमदाद की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इदारों का ताउन फरमाएंगे। हमारे इस मदरसे में मस्जिद का काम बहुत दिनों से रुका हुआ है। मेरी आप हजरात से गुजारिश है, आपसे दरखास्त है, आपसे इल्तिजा है, आप हाथ हिला दें, आप हाथ हिला दें, कोई बात नहीं है। अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह बहुत बड़े हैं। जब अबरहा की फौज गई थी काबतुल्लाह को अलयाज़ बिल्लाह ढाने और सारे काबतुल्लाह के लोग और काबतुल्लाह का मुतवल्ली काबतुल्लाह को छोड़कर मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर बाहर चला जा रहा था, किसी ने अबरहा ने पूछा कहां जा रहे हो, क्या बात है? हम तो यहाँ इस खाना खुदा को ढाने आए हैं, इस अल्लाह के घर को गिराने आए हैं। ये कहा था खाना काबा के मुतवल्ली ने, अल्फाज सुनकर चले जाओ, घर मेरा नहीं है, जिसका घर है वो खुद हिफाजत कर लेगा। छोड़कर मुतवल्ली चला गया था। उठाओ कुरान करीम को, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। रब आएगा, छोटे छोटे जानवरों के जरिए से उसने काबतुल्लाह की हिफाजत की है। मेरी और आपकी जरूरत नहीं है, इदारों की जब हिफाजत करने पर आएगा। रसूलुल्लाह जब गार में थे, अगर चाहते शेर से मदद लेते, जब गारे सौर में थे चाहते तो हाथी से मदद लेते, चाहते तो बड़े जानवर से मदद लेते, लेकिन रब ने कहा नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं, शेर तेरी जरूरत नहीं, चीते तेरी जरूरत नहीं, यहाँ ये लोग आ रहे हैं, आने दीजिए। अदना से एक मखलूक है मकड़ी, उससे कहा तो जाला तंदे। मेरे भाई रब वो है जो किसी से भी अपना काम ले लेते हैं। मेरी आपसे अदब